गुणी निधना तुमरी महिमा वर्णन ना सकूं। तू ठाकुर ऊच भगवाना गगन दमामा बाजियो परियो निशान काओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाऊ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु धन धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी जिन्हां दी पावन अते पवित्र हजूरी अंदर रात्रि दे दीवाना विच हाजरियां भर के गुरबाणी पढ़ सुन के सत संगत करके अपना मनुखा जीवन सफला कर रहे अति सत्कारयोग गुरु सवारे सतसंगी जनों, आओ सतगुणां दी कृपा दे सदका पावन बाणी दे शब्द कीर्तन आप जी ने बड़े प्यार दे नाल श्रवण कीते ने। आओ जो कल रोज तो लैके सतगुरां दी रहमत दे सदका आपां सारियां ने मिल के दसवें पातशाह धन धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु गोबिंद सिंह ਸਾਹਿਬ महाराज जी दे पावन पवित्र जीवन दीयां अमोलक विचारां दी सांझ पाण दा यतन कल रोज तो जो आपां कर रहे हैं। आओ अज भी सारे जने मिल के सतगुरां दे पावन जीवन दे अगलेरे पल विचारन दा यतन करिए। कल आपां सारे जने मिल के विचार रहे सी कि आनंदपुर साहिब जी की पवित्र धरती के उत्ते दसवें पातशाह शमशेरे बहादुर कलगीधर पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी जो संगतां सतगुरां दे दर्शन दीदारे करके निहाल होंदियां आनंदपुर साहिब जी की पुरी विच आके सचमुच आत्मक आनंद की प्राप्ति हुंदी है। उत्थे दसवें पातशाह ने 14 जंगां अपने जीवन काल दे विच लड़ियां ते सारियां दियां सारियां जंगां तो सतगुरां ने जित प्राप्त कीती है। कल आपां एक जंग दा जिहड़ा हाल सी जिहड़ी वार्ता सी वो सारियां ने मिल के सांझी कीती सी कि सैद खां बहुत वड्डी फौज लैके गुरु साहिब दे चरनां विच आनंदपुर साहिब जी की धरती ते पहुंचदा है। आया बहादुर बन के सी, सूरमा बन के सी, पर गुरु साहिब जी के चरणों का भौरा बन गया। गुरु चरणों के विच आके सतगुरां की अमृतमयी दृष्टि के द्वारा ये अपने हंकार नूं, अपनियां ताकतां नूं, अपनियां फौजां नूं भुल के गुरु चरणों का दास बन गया। बड़ा लंबा समा तक नंदेड़ तक के चौथे दसवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के नाल गया। ये साबो की तलवंडी विखे फिर पहुंचा गुरु साहिब के चरणों में। जो गुरु साहिब जी अपने बच्चे कुर्बान करके सारा कुछ कुर्बान करके जो गुरु साहिब जी जाके दमदमा साहिब जी की धरती पर पहुँचते हैं
ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੰਦੇੜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਸੈਦ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਏ, ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫੱਟੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਚੋਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਦੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਵੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਵੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐਨ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੁੱਤ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ। ਆ ਵੇਖ ਅੱਜ 4 ਪੁੱਤਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਮੈਂ ਇਹ 4 ਵਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ 4 ਵਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ। ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤ ਵੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ जी ਨੂੰ माता गुजर कौर जी ਕਹਿੰਦੇ। सतगुरु जी कहन लगे, मां तू कदे विचार के देखी मैं अपने बच्चियां दे नाम इस तरीके दे नाल रखे ने कि मैं दुनिया दे अंदर एक वखरा कौतक करके मैं इन्हां चारां तो एक बना के वो मैं एक तेरी झोली दे विच पाउणा है, फिर वो एक ऐसा होवेगा उस एक दे विच इन्हां चारां दी ताकत होवेगी। कहन लगे, मां मैं सब तो वड्डे पुत्र दा नाम अजीत सिंह रखिया। एक होर बेनती करा, जिस दिन बाबा अजीत सिंह जी का नाम सतगुरां ने पौंटा साहिब जी की पवित्र धरती उत्ते जन्म होया ते अपने सब तो वड्डे पुत्र का नाम अजीत सिंह रखिया ना, उस दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के नाम के नाल अजे सिंह नहीं लग्या होया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के नाम के नाल उदों गोबिंद राय है, पर आने वाले समय की पातशाह नूं तां सारी सोझी है। आने वाले समय दे विच पता है कि इस दुनिया में रहिंदियां रहिंदियां मैं की खेडां वरताउणियां ने। गुरु साहिब जी अपने जीवन काल दे विच पहले दिन तो ही लैके चले ने। कह लगे, मां आ देख सब तो वड्डा तेरा पुत्रा अजीत सिंह, इहदा नाम है अजीत सिंह तां रखिया इनू कोई जित नहीं सकता। ये जेड़े पासे जाएगा इहदी जित ही जित होएगी, ये किसी तो हारेगा नहीं। दुनिया दे विच कोई ऐसी किसी मां ने पुत नहीं पैदा किया जेड़ा मेरे अजीत सिंह नूं हरा सके। इहदा नाम अजीत है ते ये सदा जित्तां ही प्राप्त करता रहेगा। कह लगे, मां आ उस तो छोटे जुझार सिंह जी दे वल झात मार के देख, जेड़ा जितदा है ना उहदे कोल सब तो वड्डी एक ताकत हुंदी है कि वो बड़ा जुझारू हुंदा है। वो बहुत ज्यादा जुझारू हुंदा है। उन्हों मैदाने जंग दे विच उतर के मैदाने जंग दे विच किवें जंग करनी है उहदे कोल सलीका हुंदा है, उहदे कोल जुगतियां हुंदियां ने, उहदे कोल तरीके हुंदे ने ते ओ मैदाने जंग दे विच जुझारू बन के ते फिर वो जितदा है। कहन लगे, मां आ तीसरे पोते दे वल झात मार, इहदा नाम है जोरावर सिंह। ते एक गल याद रखी, जिहदे कोल जोर होवे, जिहदे कोल ताकत होवे, ओ जुझारू बनदा है ते ओ जुझारू बन के ओ जितदा है, ओ अजीत है, ओनू कोई जित नहीं सकदा। या सब तो छोटे पोतरे दे वल झात मार के देख, इहदा नाम है फतेह सिंह रखिया। इहदा नाम है फतेह सिंह रखिया। मैदाने जंग दे विच फतेह ओदी हुंदी है जिहदे कोल ताकत होवे, जोर होवे, बल होवे, जिहड़ा मैदाने जंग दे विच जाके जुझारू होवे ते ओ जितदा है, ते जिहड़ा मैदाने जंग दे विचों जितदा है फतेह ओदी हुंदी है। गुरु साहिब जी ने वेखो रहमत कीती। अजे समा आउणा है, इहो जिहियां जदों सतगुरां ने दुनिया दे अंदर खेडां वरताईयां ने ना, उदों समझ लगदी है कि सतगुरु जी सारा कुछ जानी जानने कि आने वाले समय विच होना की है। आने वाले समय दे विच सतगुरां ने इस दुनिया दे अंदर जिहड़ी एक कमाल दी ताकत वरता के जानी है, वो दुनिया दे अंदर अज तक ना कोई वरता सकिया ते ना ही कोई वरता सकदा है। कहन लगे, मां इन्हां चारां नूं वार के, इन्हां चारां नूं वार के मैं तेरी झोली दे विच एक पाउणा है, वो जिहड़ा एक होवेगा वो खालसा होवेगा। खालसा बनाउण दे वास्ते मैं इन्हां चारां नूं वार देना है। खालसे दा जीवन पक्का बनाउण वास्ते मैं इन्हां चारां नूं वार देना है ते इन्हां चारां दे विचों एक प्रगट करांगा। वो जिहड़ा प्रगट करांगा उहदे विच इन्हां चारां दा बल होवेगा। हुण एक मिनट दे वास्ते तुसीं कदे विचार के देखियो, बाबे अजीत सिंह जी दे विच किन्ना बल है, किन्नी गुरु ने ताकत भरी हुई है।
17 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ जी ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ फौजी ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਤੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹਾਜੀ ਕਾਜੀ सूबे सरहंद वर्गे बैठे ने, दबकारे ने, कदे प्यार करते ने। किन्नी ताकत होगी कि इन्ने वड्डे वड्डे सूबेदारां दे कोलों भी वो कदे उन्होंने अपना सिर नहीं नीवा किया। ते गुरु साहब जी ने कहा, मां मैं इन्हां चारां दी ताकत, इन्हां चारां दा बल मैं उस एक दे विच भरना है, वो एक ऐसा होगा। इस तरह दीयां रौनकां आनंदपुर साहब जी की पवित्र धरती के उत्ते लगियां पईयां ने। उधरों औरंगजेब लाहौर की धरती उत्ते बैठिया होया बड़ा तपिया पिया है कि केड़ा तरीका वरता, मैं केड़ी ताकत वरता कि मैं आनंदपुर साहब के उत्ते जाके कब्जा कर लवां ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी नूं गिरफ्तार कर लवां। उन्हां दा मैं सीस धड़ तो लग करके मैं अपने किले के गेट ते टंगना चाहता। मैं दसना चाहता दुनिया नूं कि दुनिया के अंदर रब नहीं हुंदा, दुनिया के अंदर मनुख की ताकत काम करती है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वर्गे योधिया ने इन्नियां वड्डियां वड्डियां फौजां चढ़ाई करके आउंदियां ने ते सतगुरां ने सिद्ध करके दस दिता, ये दुनिया के अंदर कदे किसी की ताकत नहीं वरतदी। दुनिया के अंदर किसी के जीवन दे विच कदे किसी की ताकत नहीं वरतदी। किसी भी मनुख की जिंदगी विच वो हुंदा है जो रब नूं मंजूर हुंदा है। उस मनुख की जिंदगी के अंदर वो हुंदा है जो रब नूं मंजूर हुंदा है। किसी के जीवन के अंदर किसी की कोई ताकत नहीं वरतदी। भावें लख वारी अज दुनिया के अंदर अज भी झात मार के देख लो, अज भी गरीबी का घाण किया जा रहा है। अज भी हुकूमतां जिहड़ियां ने वो वार वार किसी ना किसी तरीके दे नाल चढ़ाई करके आउंदियां ने। पर असलियत ये है कि दुनिया के अंदर होवेगा वो जो मंजूरे खुदा हुंदा है, जो रब जी नूं मंजूर हुंदा है, वो दुनिया के अंदर हुंदा है। समा बतीत होया औरंगजेब ने लाहौर की धरती उत्ते बह के पहाड़ी राजियां नूं एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी दे विच लिखिया पहाड़ी राजियां नूं कि अज तो पिछे जो कुछ भी होया उन्हों भुल जाओ। जेड़ा मैं हुण कुछ करन वाला वां ना वो ऐसा करांगा कि आनंदपुर साहब जेड़ा वो मेरा होवेगा। अज मैं इस तरह का कुछ करना चाहुंदा। इन्हें पूरे भारत के अंदर जिथे जिथे भी ये वजीर अमीर बैठे सन उन्हां सारियां दे पासे चिट्ठियां लिख दित्तियां। उन्हां दे विच जिन्ने भी योधे, जिन्ने भी उन्हां दे कोल फौजां ने, वो सारियां दियां सारियां फौजां इकट्ठियां करनियां शुरू कर दित्तियां। लाहौर की धरती तो जबरदस्त खां नूं औरंगजेब ने भेजिया वड्डियां फौजां दे के। सरहंद की धरती तो वजीर खां आया। पहाड़ी राजियां दे विचों अजमेर खां जिहड़ा सी वड्डियां फौजां, अजमेर चंद माफ करना, अजमेर चंद वड्डियां फौजां लैके आया। उधरों कांगड़े की धरती तो घुमंड खां बहुत वड्डियां फौजां लैके आया। इदां कह लीए कि चारे पासियां तो जिथे जिथे भी इहदियां फौजां खिलरियां होईयां ने, इन्हें सारियां दियां सारियां श्रीनगर तो भी फौजां जिहड़ियां सन वो आनंदपुर साहब दे विच भेज दित्तियां। आनंदपुर साहब जी दे विच जिक्र है कि 10 लाख की फौज जिहड़ी है वो आनंदपुर साहब दे विच इकट्ठी हो चुकी है। 10 लाख की फौज, क्योंकि औरंगजेब बड़े तरीके वरत के बह गया। अपने कोलों वक्रे वक्रे वड्डे तो वड्डे योधे भेजदा, पर उन्हां दे विचों एक भी ऐसा ना होया
ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ महाराज जी का एक ही वार सहार सके। हर वारी हार हार के जाना पैंदा है। कहंदा जेड़ा मैं हुण यतन करांगा वो यतन ऐसा होवेगा कि आनंदपुर साहिब की पुरी जिहड़ी है वो मेरी होवेगी। आनंदपुर साहिब जी की पुरी जिहड़ी है वो मेरी होवेगी। सैनापति गुरु साहिब जी का एक कवि होया है, उन्हें बड़े प्यारे प्यारे ग्रंथ लिखे ने। उन्हें गुरु शोभा एक ग्रंथ लिखिया है, उहदे विच सारा जिक्र किया कि आनंदपुर साहिब जी दे विच किवें किवें की होया वरतिया। आनंदपुर साहिब जी दे विच की होया वरतिया उन्हें अपने ग्रंथ विच लिखिया। कहंदे रंगड़ गुज्जर अते पठान राजे चौं दिस पहुंचे आन। आनंदपुर साहिब जी की धरती के उत्ते उन्हां राजियां दे विचों कोई रंगड़ है, कोई गुज्जर ने, कोई पठान ने। इस तरह कह लीए कि जिन्नियां भी उहदे कोल फौजां जिद्दां अज दी हुकूमत दे कोल फौजां वक्रियां वक्रियां, कोई सिख रैजीमेंट है, कोई किस तरह की, कोई किस तरह की, वो सारियां दियां सारियां फौजां इकट्ठियां करके आनंदपुर साहिब नूं घेरा पा लिया गया। उन्होंने एक विਉਂਤ बनाई कि आनंदपुर साहिब नूं घेरा पा लो, ते कहंदे उन्होंने इस गल तो मनाही कर दी कि इस आनंदपुर साहिब दे विचों, इस किले दे विचों कोई मनुख बाहर नहीं जा सकता। 10 लाख की फौज का घेरा है। ते आपां इत्थे एक छोटी जी गल कह के गांह तुर जाने आ कि गुरु साहिब जी किले दे अंदर, सिंह किले दे अंदर ते 7 महीनों का घेरा पिया रहा। 7 महीनों तो बाद सतगुरु ने किला छड्ड दिता। हुण जे 7 महीनों का किते आपां एक एक दिन विचार के देखिए कि चारे पासियां तो 10 लाख फौज ने घेरा पाया होया। किले दे विचों कोई एक भी मनुख बाहर नहीं जाता। उन्हां इन्नी शक्ति कर दिती इस थां दे उत्ते कि इत्थों तक जे किले दे विचों किते बाहर पानी लैण वास्ते भी जाना है वो भी मनाही है। कहण तो भाव सी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं आपां इन्ना तंग कर दईए कि एक दिन गुरु गोबिंद सिंह औरंगजेब की सोच ते ये सी भई एक दिन गुरु गोबिंद सिंह साहब आप आके साडे सामने कहे कि आनंदपुर साहिब का मैं किला छड्डिया। हुण 7 महीने का घेरा इतिहास के मुताबिक। हुण जिहड़े गुरु चरनां विच सिख रह रहे ने, परिवारां दे परिवार रह रहे ने, हो सकता है उन्हां दे नाल भी बच्चे होण। जिक्र तां इतिहास दे विच किसी इतिहासकार ने कीता नहीं। जेकर आपां गुरु साहिब जी के जीवन नाल देखिए, गुरु साहिब जी ते बच्चे तां इतिहासकारां ने ऐन कढ के सामने रखे ने ना कि सतगुरां दे जिहड़े चारों लाल ने आनंदपुर साहिब जी की धरती दे उत्ते ने। ते जिदन शहादत देंदे ने बाबा फतेह सिंह की उम्र उदन 7 साल की कही जाती है। इन्हां 7 महीनों दे विच किले दे विच हालात जिहड़े सन इन्ने तरसयोग हो गए। इस तरह का समा आ गया, कदे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ एक एक मुठ छोले खा के पानी पी के गुजारा करना पैंदा है। इस तो भी गांह का समा आया, रुखां दे सक ला ला के उन्होंने पीस पीस के सिखां ने खाधा। 7 महीने का घेरा सी। मैं कहना सानू 7 घंटे भी अपने घर दे विच किते कटने पैना सी वो भी नहीं कट सकते। 7 महीने का घेरा है। कदे विचार के देखियो जो बाबा फतेह सिंह जी वर्गे इन्ने कोमल जाए जिहड़े उन्हां टाइमां दे बच्चे सन, साडे बाबे ने 7 कुछ साल का बच्चा साडे सामने भुख दे नाल कुरलांदा होवे ते मां प्यो दा की हाल हो सकता है। कदे विचार के देखियो, ये सानू समझ तां लगनी है जे इन्हां चीज़ां नूं केवल उत्थे ना रहन दी अपने जीवन विच ढाल के देखिए। अज अपने बच्चे एवें सामने बिठा के ना उन्हां दे विचों कदे बाबा फतेह सिंह जी के दर्शन करके देखिए कि बाबा फतेह सिंह जी उदों इन्नी उम्र दे सन जिस दिन उन्होंने एडी वड्डी कुर्बानी दी। 7 महीने के घेरे विच रहे ते यह भी समा आया कि सिखां नूं दरख्तां दे सक ला ला के खाने पे। जदों किते पानी की जरूरत पैंदी है ना
ਤੇ 4 ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 4 ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 4 ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤਦੇ ਨੇ। 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝੀਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਗ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾ, ਕਦੇ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਹੋਣ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਖਿੱਸਾ ਮੇਰਾ। ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਵਿਚਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੱਕ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਹਿਮਤ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ
दुनिया के 9 खजाने किया, सारे खजाने गुरु के कोल ने, जो चाहे वह कर सकता है। पर जिदन सिंह अत की तकलीफ दे विच ने, उदन का जिक्र किसी ने नहीं किया कि गुरु साहब जी ने रहमत कर दी ते सिखां नूं भुख ही नहीं लगी। अज भी गुरु साहब दे कोल जिहड़े प्यारे सिख ने, भावें 7 महीने तो भुखे ने, पर शरीर इन्ने कमजोर हो गए ने कि अपना भार भी शरीर नहीं सहार रहे, पर फिर भी सतगुरां दा एक इशारा ढीक रहे ने कि सतगुरु जी एक बारी इशारा कर दिओ, भावें 10 लाख दीआं फौजां ने बाहर मैदाने जग दे विच जूझ के वक्त पा देंगे एक बारी इन्हां नूं। अज भी सतगुरां दे एक इशारे नूं ढीक रहे ने। गुरु साहब जी ने रहमत की। अज एक दिन ऐसा आया, पहाड़ी राजे जिन्ने भी इत्थे फौजां इकट्ठियां होईयां ने, उन्होंने एक कुरान का एक सलोक लैके, एक आयत लैके कुरान दी, उन्होंने एक थाल दे विच रखिया। पहाड़ी राजियां दे वल्लों एक गां आटे दी बना के वो थाल दे विच रख के गुरु साहब दे चरनां विच कुछ मनुख भेजे ते एक पत्रिका दे रूप दे विच सौं खाधी है। पत्रिका दे रूप दे विच सौं खाधी है। जेड़े गऊ नूं मनण वाले सन उन्होंने गऊ की कसम खाधी, जेड़े कुरान नूं मनण वाले सन उन्होंने कुरान की कसम खाधी कि आनंदपुर साहब एक छोटा जिहा शहर है, छोटा जिहा नगर है। औरंगजेब ने कहा मैं इन्ना वड्डा राजा, दुनिया दे विच मेरियां धुम्मां पईयां होण ते मैं एक आनंदपुर साहब दे किले नूं ना जित सकां, मेरे वास्ते बहुत वड्डी शर्मिंदगी की गल है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी, तुहानू वास्ता है, तुहानू बेनती है, असी कुरान की कसम खा के, असी गऊ की कसम खा के ये कहने आ कि जेकर तुसी आनंदपुर साहब का किला छड्ड दिओ, तुसी जो चाहोगे असी देन वास्ते तैयार हाँ। असी तुहाडे नाल किसी तरह की कोई जंग नहीं करांगे, तुहाडे उत्ते कोई हमला नहीं करेगा। इन्हां ने कसमां खादियां। अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कृपा की ते सतगुरां ने हामी भर दी कि असी सिखां नूं ऐलान कर दिता कि असी किला छड्ड रहे हैं। अज सिखां ने बेनती की, गुरु साहब जी कदे सिख बेनती करते ने, कदी मातावां बेनतियां करदियां ने, कदे माता गुजर कौर तुहाडे कोल आके कहंदे ने असी किला खाली कर दईए, तुसी उस दिन नहीं मनी, पर अज एक तुर्कां दी, अज उन्हां दी एक पत्रिका आउण ते तुसी बड़ी छेती दे नाल ऐलान कर दिता है। सतगुरां ने एक कृपा की, बचन कीते। सतगुरु जी कहन लगे इन्हां धर्म दे चिन्हां दे वास्ते, इन्हां धर्म दे चिन्हां दे वास्ते कदे मैं अपना पिता कुर्बान कीता है, इन्हां धर्म दे चिन्हां दे वास्ते अज मैं अपना सारा कुछ भी कुर्बान कर देना, क्योंकि मैं सिखा तेरे जीवन दे विच सारा कुछ भरना चाहुंदा। तेनू समझ होवे कि जेड़ा सिक्खी दा चिन्ह होवेगा उहदे विच किन्नी ताकत होवेगी, तू उहदा किन्ना सत्कार करना है। तू ये ना होवे कल नूं कृपान पाई होवे, तेनू कृपान दे सत्कार दा ना पता होवे, तेनू पता ही ना होवे कि मैं अपने धर्म की राखी किवें करनी है। किवें किवें सतगुरां ने सारा कुछ सिखां नूं समझाया, किवें किवें किला छड्डिया। कल दे दीवाना दे विच विचारन की कोशिश करांगे जी। होईयां बेअंत भुल्लां तो खिमा बख्शनी, आईयां होईयां संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।